संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों,
कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो विज्ञान और तर्क के परे होती हैं। ऐसी ही कुछ चमत्कारी घटनाओं की आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें चिकित्सा और दवाओं की सीमाएं टूटकर किसी परम शक्ति का एहसास होता है। आज हम आपको मिलाते हैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली भुवनेश्वरी दासी जी से। इनका जीवन एक जीता जागता प्रमाण है कि परमात्मा की दया से असंभव भी संभव हो सकता है। भुवनेश्वरी जी को सिर में इतना तीव्र दर्द था कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। वह लगातार पीड़ा में थी, लेकिन आज बिना किसी ऑपरेशन के वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उनकी 79 वर्षीय दादी जी, जिन्हें कैंसर की पूरी आशंका थी, आज स्वस्थ हैं और अपनी उम्र के बावजूद बिना किसी परेशानी के रोजमर्रा के सभी काम कर रही हैं। उनकी बहन के साथ भी एक अद्भुत घटना घटी थी। एक दिन उनकी आंखों में कुछ गिर गया, जिससे वे 2 दिनों तक कुछ भी देख नहीं पा रही थी। लेकिन आज बिना किसी उपचार के उनकी दृष्टि पूरी तरह ठीक हो गई। तो आखिर यह चमत्कारिक सुख कैसे प्राप्त हुआ? कौन सी अदृश्य शक्ति ने उनके जीवन को इतने कठिन मोड़ों से निकालकर एक नई दिशा दी? आइए जानते हैं भुवनेश्वरी जी से, जिनका जीवन एक प्रेरणा और विश्वास की कहानी है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भुवनेश्वरी साहू। कहाँ से हैं जी आप? मैं ग्राम दतरंगी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं 10 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा व्रत रखते थे। मेरे पापा जी शिरडी जाते थे और साईं बाबा को इष्ट रूप में मानते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? हम लोगों को इतनी भक्ति साधना करने से भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए। क्या लाभ चाहिए था आपको? हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था सर। अगर मैं ठीक रहती थी तो मेरी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, फीवर हो जाता था, जुकाम, हाथ पैर में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो मैं ट्रीटमेंट के लिए मैं रायपुर गई थी, बालाजी हॉस्पिटल। तो डॉक्टरों ने वहाँ मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं फिर पापा ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। नाक के थ्रू पाइप डालकर मेरा ब्रेन का ऑपरेशन होना था और फिर पापा ने मुझे आके बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। तो मैंने पापा को कहा, होली का त्यौहार था उसी समय, तो मैंने पापा को कहा कि पापा अभी मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं त्यौहार मनाने के बाद आके ऑपरेशन करवा लूँगी। फिर हम लोग घर आ गए सर। तो फिर उसके बाद हमारे घर में मेरे बड़े पापा हैं गांव के, वो आए थे। तो उसने बताया कि मैंने एक गुरु बना रखा है, संत रामपाल जी महाराज बरवाले में हैं। फिर उसने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लीजिए। तो पापा को एक बुक दी उसने, ज्ञान गंगा। तो पापा ने उसे 1-2 दिन ही पढ़ा। उसके बाद फिर पापा ने कहा कि इतनी सारी साधना करने के बाद भी ठीक नहीं है, तो चलो एक बार जाके देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए, सतलोक आश्रम बरवाला। फिर वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने पंडित छोट से नाम दीक्षा ली। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन के लिए गए। तो दर्शन के लिए जब हम गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी आए और मेरे सिर पे हाथ रखा। उसके बाद फिर मम्मी के पास गई। उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज ने उसको भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज आगे जा रहे थे, तो मम्मी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज, मेरी बेटी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे करके। तो फिर परमात्मा आए फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, भक्ति करो बेटा, परमात्मा दया करेंगे। भगत जी, उस दिन का दिन है और आज तक मेरे सिर में कोई दर्द नहीं होता और न ही मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, न मैं किसी प्रकार की टेबलेट लेती हूँ। मेरी दादी जी है, उनकी आयु अभी 89 ईयर्स की हो गई है। वो उनके सिर के ऊपर में बड़ा सा गांठ हो गया था। वो बहुत दिनों से था, 15-20 साल से था वो, लेकिन वो 2021 में उनका जो गांठ था वो फूट गया और उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी। हम लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन
कर दो या फिर कुछ भी करो, इनको ठीक कर दो। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी एज भी ज़्यादा हो गया है और इनके बॉडी में ब्लड भी नहीं है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे करके बोले। फिर हम लोगों ने, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना किया, तो फिर हम लोगों ने घर में ही उनका ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया। और मेरी दादी को इंजेक्शन लगते थे और टेबलेट देते थे, और फिर हम लोगों ने खुद उनके जो गाँठ था उसका जो भी मवाद वगैरह होता था, हम लोग खुद उनको साफ़ करते थे। हम लोग उनके वो गाँठ से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होता था, हम लोग बड़े बड़े कपड़े लेके उनके जो गाँठ थे उनको, जब उनके ब्लड को करते थे तो वो पूरा कपड़ा गीला हो जाता था। हम लोग 5-6 ठो बड़े बड़े कपड़े से हम लोग उनका ब्लड को जो कि रोकने के लिए करते थे, लेकिन वो ब्लड रुकता नहीं था भगत जी। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। फिर परमात्मा से कहा कि मेरी दादी के में कैंसर की प्रॉब्लम्स है, संत रामपाल जी महाराज। फिर परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति करो। उसके बाद भगत जी हम लोगों ने ओनली घर में ही ट्रीटमेंट करवाया। हम लोग खुद भी कर लेते थे, मतलब उनको साफ़ ऑफ करना होता था तो हम लोग कर लेते थे, और मतलब वो धीरे धीरे आज पूरी तरह से ठीक हो गया है और हमारी दादी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है और वो आज एकदम ठीक है। वो अभी 89 ईयर की हो गई है, लेकिन वो लगती नहीं है कि इतनी एज की हो गई है। वो अपना काम स्वयं कर लेती है। और मेरी एक सिस्टर है, उनके आँख में कुछ चला गया था तो वो अपनी आँखें को खोल नहीं रही थी, उसने 2 दिन तक अपनी आँखें नहीं खोली। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उनकी आँख को खुलवाने के लिए, फिर वो अपनी आँखें नहीं खोल रही थी। फिर हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से आदेश लगाए। परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा जी दया करेंगे। फिर हम लोगों ने उसे प्रसाद और चरणामृत पिलाया। उसके बाद फिर परमात्मा ने कहा, उसके आधे घंटे के बाद मेरी सिस्टर ने अपनी आंखें खोल दी भगत जी। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा पेन होता था और खुजलाता था और सूज जाता था। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता था। मैं झाड़ फूँक भी करवाती थी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं होता था और वो ठीक तो हो जाता था। जब तक मैं ट्रीटमेंट करवाती थी वो ठीक हो जाता था, उसके बाद फिर वो फिर से हो जाता था। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था। और फिर संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली तो वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। कम से कम 10 साल से मुझे ये प्रॉब्लम थी, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पूरी तरह से ठीक हो गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? जो भी आज मुझे आपकी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, जो कि हमारे हॉली बुक्स को खोल खोल के बता रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना बहुत आसान हो गया है। विभिन्न चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और उन सत्संग के दौरान उनके नीचे में एक पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र में जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे
विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहां। परमात्मा ने कहा नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने कि इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है। मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा तू सिरफरा व्यक्ति, सिरफरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है। विष्णु और शंकर तो अजरो अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे, पर साकार है भगवान, नर आकार है भगवान और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका। सत सुकृत परमात्मा थे, लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया इन नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में। उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसा ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाहनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेदविज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो ताड़ देते थे, तू हमारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तू हमारा पुत्र हो करके, यानी पुत्र की तरह प्रवेश करने से वो पुत्र
वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है, थोड़ी बहुत ओझल हो जा, आंखों से इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे कि गतिविधि। अब एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं। उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते, उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को, समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बना के, मूर्ति बना के वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जन साधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं में परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन दो युगों में ब्राह्मण के घर ही आए, ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं और वो भोगनी ही पड़ेंगी, तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप? इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें? तो वो कहा करते तुम तो उल्टी बात करे सारी, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के दो मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों कुछ ऐसा रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहे। वहां जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में
लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहां से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहां मुझे राहत मिल जाए। तो जहां भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते नहीं कटते थे, तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए। और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची के हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वो उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। ए भगवान, हमें नहीं मालूम था परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, अब आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं, ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या हैं। कहने लगे महाराज मैं उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो बड़ी तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में क्या आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए,
तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जो इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, शीश यहां से काट कर शीश चढ़ा दिया, 10 हाथ और सिर, और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, उस अहंकार के कारण कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है, नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा, 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाई फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े निकले, कहाँ की के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह के से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो भगवान सबको, कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी ही आते थे, सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियां ऋषियों द्वारा। और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने न्यारी कुर्सी देंगे, और आ जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहां इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं। और वहां कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहां विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं, और टीचर जो है वो आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अब उन अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भी प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है। और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं इधर पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लगा, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। जूता पहन ले और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। तो फिर वो कांटे की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति खूब समझता है कि कांटा कितना दुखदाई होता है, तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा, बहुत सावधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपत्ति ना आ जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे आपके प्रारब्ध में रूपी पाप कर्म का कांटा आप पर लगा हुआ है और वो कांटा निकलेगा यानी सुख हो गया, फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये मर्यादा में रहना, ये भक्ति करते रहना। तो वो प्राणी फिर कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता, इस भय से कि कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जाए, फिर से वो आपत्ति ना संकट आ जाए, कितना बुरा हाल हो गया था हमारा। तो फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता और सीधा चलता है।
तो इसी प्रकार परमात्मा उनको सलाह देते थे उपस्थित भक्तों को, और वहां परमात्मा के पास, कबीर साहब के पास यानी मुनिंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी व्यक्ति आते थे। कोई मानसिक पीड़ित, कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ, कोई देवों का श्राप दिया हुआ, कोई किसी ऋषि साधु संत ने उनको श्राप दे दिया, या कोई प्रारब्ध के कष्ट से दुखी, या कोई शारीरिक रोग से दुखी। और परमात्मा तो हमारे भगवान है, वो तो अपने बच्चों के सारे दुख दूर किया करते हैं। तो वहां वृद्ध अवस्था ज्यादा बीमार सिमार आते थे, तो भगवान सलाह दिया करते थे, भाई बूढ़े बुजुर्ग रोगी का की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं करे। कहते कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि यदि भक्त का कोढ़ भी लगा हुआ, कुष्ठ रोग भी लगा हुआ हो, मक्खियां भिनक रही हो, उससे नफरत ना करना, उसका मदद करना बल्कि जितनी हो सकती है। कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, भगत को प्रणाम कीजिए, आपस में एक दूसरे को सत्साहेब, उसे नफरत करके मुंह फोड़ कर नहीं जाना चाहिए। और होवे स्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन कोई अपने क्रमवश गणिका भी बन गई है, वैसा भी वर्ती कर रही है, और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना। क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को ना देखकर दूसरे को के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। अब जैसे पुण्यात्माओं, कोई चोर है, डाकू है, और कोई दुराचारी है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको ये पता कैसे लगेगा ये पाप कर रहा है तू। जिस कर्म जिस क्षेत्र में वो रहता है, वो तो वो वहां उस माहौल में तो फंसा हुआ है, उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवेगा, साबुन प्रयोग नहीं होगा उस पर, तो वो मैल समाप्त कैसे होगा। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानी मुनिंदर जी अपने उपस्थित श्रोताओं को, भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे, पाट टूटा हुआ था दुखों का, 30-30 वर्ष के हो गए थे और बचपन से ही दुखी थे। और जिसने सुसाइड तक की सोच रखी और वो व्यक्ति इतना सुखी हो जाए तो वो ठीक है, हमारी बुद्धि इतना काम तो नहीं करती कि उन्हें भगवान मान ले, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान सकता वो व्यक्ति जब थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो तो एक महान आत्मा थी नल नील। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊंगा, उनके कपड़े धोएं, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नुहावें। यानी इस तरह वो सेवा करने लगे जो परमात्मा मुनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे। और फिर अपने बीते हुए समय पर, अपने पास टाइम पर भी बहुत विचार करते थे और कहते थे, देखिए वो ऋषि क्या बकवाद किया करते थे। पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले, ये मंत्र कर ले, और फिर लास्ट में कह देते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ कहाँ गई वो हमारे प्रारब्ध। तो भाई भगवान आगे हैं, परमात्मा जैसे है अपने गुरु जी, बड़ी दया करी अपने पर। और देखो आज सत्संग में ऐसा बताया, कभी सुना नहीं हमने,
अपने आत्मा जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जाए, और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा है यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान दास तो एक है जे टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है उठ कर चल पड़े, वैसे बक रहा है सब, आज तक कभी सुना नहीं। तो पहले परमात्मा वो सिलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उब रहा है। तो यार सच्ची तो ये है ही है, हमें उस अज्ञान के कारण ये नहीं अच्छी लग रही थी। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे भाई, इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते, एक तरफ भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर आपत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहां गए, गुरु जी ने बुलाए। परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लग गए, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहते जी इनने कई बार कह लिए बात, तो ये फिर जाते भूल जाते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये महा दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, वो वहीं जहां रखोगे वहीं रहेगी, इधर टस समस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतना। अब इस वर्क को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े धर दिए, भिगो दिए, जहां रखे थे वही रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी था बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर एक आध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो, वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहां रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सती रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। उसके घर के वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधू पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अपने आत्माओं, एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे चिंता में नींद नहीं आती,
और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड, चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक का चाहे कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है, और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੂੜਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਦੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦਾਂਤ ਆਚਾਰੀਆ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਫਿਰ 27 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜੋ ਹੈ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ 2011 ਤੋਂ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਔਰ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੰਤਰ, ਉਹੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਾ ਅੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪਟਣ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਜਹਾਂ ਅਦਲੀ ਸਤਗੁਰ ਸਾਰ, ਭਗਤੀ ਹੇਤ ਸੇ ਉਤਰੇ ਪਾਇਆ ਹਮ ਦੀਦਾਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਲਲ ਪੰਖ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ ਸ਼ੁਨ ਮੰਡਲ ਰਹਿ ਥੀਰ, ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਉਧਾਰੀਆ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰ। ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਲੋਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਾ ਏਕ ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੀਰ ਹੈ ਕੁਲ ਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਸੰਤ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਤਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਨਾਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਸਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਹੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਜੈ ਨਾਮ, ਜੀਵ ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਜਾਤ ਹੈ ਪੀਵ ਰਹਿ ਤਿਸ ਦਾਮ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਪਾਲੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਸੰਕੇਤਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਸ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਪਾਲੜੈ ਰੰਗ ਹੋਰੀ ਹੋ, 14 ਲੋਕ ਚੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਹੋਰੀ ਹੋ, 3 ਲੋਕ ਪਾਸੰਗ ਧਰੈ ਰੰਗ ਹੋਰੀ ਹੋ, ਤੋ ਨਾ ਤੁਲੇ ਤੁਲਾਇਆ ਰਾਮ ਰੰਗ ਹੋਰੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਅੰਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਹਮ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਜ ਵੀਰਜ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਿਨ ਸੋਹਮ ਸੀਝੈ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਿਸਾਰ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਊਗਾ। ਸੋਹਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਨਿਜ ਮੰਤਰ, ਸਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਮ ਉੱਪਰ ਔਰ ਹੈ, ਸਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਭ ਹੰਸੋਂ ਕਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਦਾ। ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਲਾਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਲ ਗਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨੀਲ ਗਾਏ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਕਰਾਈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ। ਔਰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਰੋਚ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਬਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 60 ਬਾਈ 40 ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 60 ਬਾਈ 40 ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਮ ਕਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 60 ਬਾਈ 40 ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਢਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅਦਮ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੂਈ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਹੈ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਉਹ ਸੂਈ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਥੈਲਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਥੈਲਾ ਸਲਾਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟੱਚ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 82 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਸ 83 ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ 98 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 139 ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 180 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ, YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਪ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਗੀਤਾ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।